Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class. And today's class is class number 2 from the unit Resource Mobilization. And the topic of today's class is physical resources and human resources. Believe me on this, dear students, that whenever you talk about organizations which are growing, which are doing well, they do a lot of research work, a lot of planning, a lot of strategies on maintaining physical resources as well as human resources in all the forms. It is not simple. And, you know, it is not even difficult, but yes, it requires, management. It requires knowledge. Means if you are taking any action haphazardly or without thinking about the outcomes of those actions, this could be a very dangerous affair if you are knowing less about physical and human resources and running a firm. So it's very important. So let's start today's class. In today's class we are going to take up two major points, and how means on the basis of those two major points, rest sub points. We're going to talk about physical resources and human resources today. 4 points on physical resources and four more points on human resources. On physical resources, you will have importance of physical resources, point number one. Point number two, site related considerations. Point number three, equipment and technology factors. Point number four, growth and market relevance. On the other hand, in human resource, you will have a role and importance of human resource, type and quality of personnel, quantity and organizational planning, and selection and professional support. So these are 8 points we are going to discuss today, and we are going to learn about physical and human resource, you know, and they're working in resource mobilization. Let's talk about physical resources. Importance of physical resources. Physical resources are man-made assets like buildings, plants जहां पे प्रोडक्शन होता है, machinery needed to run an enterprise. So physical resources are man-made assets. इसे मार्क कर देता हूं. Physical resources are man-made assets. Second point, entrepreneurs must first assess the place where the enterprise will be established. Very, very important. Extremely important. ये पता हो कि भैया हमने इंडस्ट्री कहाँ लगानी है, काम कहाँ शुरू करना है. Place is very, very important. Its location is very, very important. Its nearness to highways, nearness to other parts of the country is very. Infrastructure like electricity, water, fuel supply forms the base physical resources. So infrastructure में electricity is very, very important. Water, sanitation, water supply is very, very important. Fuel supply is also very, very important. Fourth point, the selection of physical resources greatly affects capital cost, manpower availability, and access to markets. अब बच्चों जब हम ना इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं ना, इट सीम्स वेरी सिंपल कि हम इन्हें मैनेज कर लेंगे, लिख लेंगे. But what examiner is exactly looking forward for is that you should write first of all in points, point number 1, 2, 3, 4, and use proper phrases for that. So importance of physical resource is there, and I have given you 4 points on it. Site related consideration. किस साइट पर काम खोलना है,
कहाँ खोलना है, कैसे खोलना है. फैक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉस्ट, legal requirements, impact of pollution, and choice of location plays a very crucial role when you're going to decide about the site. Proximity to raw materials. भाई अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो इजिली रॉ मटेरियल आपको मिलना चाहिए. मैं कोई एग्जांपल देता हूँ बच्चों. मेरे घर के पास है ना, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं, मतलब इतनी पास नहीं है, 3-4 किलोमीटर के एरिया पे है, जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, मिल का भी होता है. और मेरे घर के पास बहल भी है. तो काफी काफी काम होता रहता है वहां पे. पर आप ये देखिए कि वो जो एरिया है ना, इट इज वेरी वाइड, रोड इज वेरी वाइड, लगभग 100 फुट की रोड होगी. और उसकी बहुत ही नियर प्रॉक्सिमिटी पर हाईवे जा रहा है, NH 44. तो उससे क्या है कि जितना भी काम हो रहा है ना, वो काम भी चलता रहता है. यहाँ पर हमारे यहाँ पर सतमूला की फैक्ट्री है, और कई कंपनीज भी हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया, और कई फैक्ट्रीज है जहाँ पर प्रोडक्शन रेगुलर होती रहती है, न्यूज़पेपर छपता रहता है. तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट एक्सेस इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट. तो कितने आप नियर हैं रॉ मटेरियल के, जिन मार्केट्स को आपने सप्लाई करना है उन्हें कितनी जल्दी आप सप्लाई कर सकते हैं, कितना कम लॉजिस्टिक्स आप यूज करते हैं. तो दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल. थर्ड पॉइंट, infrastructure decisions affects long term possibility, feasibility and operational efficiency. तो जितना अच्छा आपका इंफ्रा होगा, ये आपका इंपैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल एफिशिएंसी को. अब ये देखिए कितना अच्छा फ्रेज है, लॉन्ग टर्म feasibility and operational efficiency. Location also determines wages, salaries and utility cost. उसी प्रकार के आपको लोग मिलेंगे, उसी प्रकार से आपको सैलरीज देनी पड़ेंगी. सैलरीज देंगे लोग, सैलरीज लेकर काम नहीं भी करते हैं कई बार. तो यू आर इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट गुड पीपल, दोज विल सपोर्ट द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विल पे वेजेस, विल पे सैलरीज, एंड यू नो दे विल डू 5 times वर्क द सैलरीज दैट they'll take. और ये हर जगह पॉसिबल नहीं. सो साइट रिलेटेड कंसिडरेशंस आर वेरी वेरी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, equipment and technology factors. Entrepreneurs must carefully choose machinery, tools, and technology suited to current market needs. मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये इतना जबरदस्त पॉइंट है कि जो आपने मशीनरी चूज करनी है ना, मशीन, वो सेकेंड हैंड नहीं लेनी. सेकेंड हैंड तो पहले ही लोगों ने यूज करके, खराब करके, उसका जूस निकाल के आपको देती होती है. ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिससे आपने आगे बढ़ना है. अब आप सोचिए आपने एक बाइक ले ली है, आप सेकंड हैंड लेंगे ना, थोड़ी सस्ती मिल जाएगी आपको, 50,000 में सस्ती मिल जाएगी, पर उसमें कितनी खामियां होंगी. आप चलाएंगे, तरीके से चलाएंगे, खुद चलाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट ही आपके काम पर, आपकी एफिशिएंसी पर और पड़ता है. टेक्नोलॉजी सूटेड टू करंट मार्केट, जैसी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है उसी में ही पैसा इन्वेस्ट की. मैं एग्जाम्पल बताता हूँ बच्चों. मैं आज से 3-4 साल पहले 2021 में मेरे पास i3 था, डेल का. और मैं जब यूज करता था तो कई बार मुझे ना लिखना पड़ता था स्क्रीन पे, तो इट मूव्स वेरी स्लो. तो मुझे ऐसा लगा शायद ना ये टेक्नोलॉजी अभी अपडेट नहीं हुई है कि आप स्क्रीन पे फास्ट लिख सको. जब से मैंने i5 लिया है, 4 साल पहले मैंने i5 ले लिया था, अब मुझे पता चला कि इफ यू राइट तो वो कितना इम्पैक्टफुल आता है. और मेरे ख्याल से i7 में इससे बेटर होगा, और i9 में तो बियॉन्ड माय विजन से परे होगा. तो दिस वे वही टेक्नोलॉजी यूज करनी है जिसका एक्चुअली में यूज है. ऑब्सोलीट पुरानी टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं, लेट इट गो. उसका वक्त था, उसने काम किया, चली गई, देयर इज नो नीड टू ब्रिंग इट बैक. नेक्स्ट, ड्यूरेबल एंड एफिशिएंट इक्विपमेंट कैन इन्फ्लुएंस शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कॉस्ट. ड्यूरेबल इक्विपमेंट दीजिए, इक्विपमेंट पैसा लगाइए, और जितना ड्यूरेबल होगा उतना ज्यादा चलेगा,
और आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी कम करे। पता चला जी आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, बार बार आपके टूल्स ही बिगड़ रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी डन। टेक्नोलॉजी सिलेक्शन शुड कंसिडर ईज ऑफ अडॉप्शन एंड ट्रेनिंग फॉर मैन पावर। आप नई नई टेक्नोलॉजी लीजिए, ऐसी टेक्नोलॉजी लीजिए जिससे आप इजीली अडॉप्ट कर पाए, आपकी मैन पावर उसके लिए ट्रेंड हो, प्लस अगर उनको कभी भी ट्रेनिंग की और मैन रिक्वायरमेंट है तो यू कैन इजीली प्रोवाइड इट टू देम। आउटडेटेड मशीनरी कैन रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी एंड लीड टू पुअर कैपिटल बजटिंग। बस यही काम नहीं करना। आउटडेटेड मशीनरी ये ना ग्रोथ को हॉल्ट कर देती है, एंड क्रिएटिविटी एंड लीड टू पुअर कैपिटल बजटिंग। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी ना मैं जोधपुर गया कुछ टाइम पहले, और जो हमारा प्लेन था जिसमें हमने यहाँ से फ्लाई किया, मेरा एक दोस्त भी था साथ में, वो प्लेन है ना एब्सोल्यूटली न्यू था, एब्सोल्यूटली न्यू। मतलब ये उसकी आपकी फर्स्ट सेकंड फ्लाइट होगी। तो उन्होंने कहा, अनाउंस किया कि द प्लेन दैट वी हैव बीन यूजिंग टुडे, इट इज एब्सोल्युटली न्यू। आप देखिए ना, उसमें आवाज थी, अरे गेटिंग, जब प्लेन के विंग्स घूमते आवाज नहीं थी, और यू नो द फीलिंग वाज एब्सोल्युटली ऑफ कॉन्फिडेंस कि नया प्लेन है, इट विल फ्लाई, इट विल ग्लाइड एंड इट विल टेक अस टू द डेस्टिनेशन सेफली। तो ये चीज है ना, ये तभी आती है व्हेन यू इन्वेस्ट इन फ्रेश मशीनरी, नॉट आउटडेटेड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये फिजिकल रिसोर्स का लास्ट पॉइंट है, ग्रोथ एंड मार्केट रेलेवेंस। चूजन रिसोर्सेज शुड अलाइन विद मार्केट साइज एंड प्रोडक्ट रेंज डिमांड। जो भी रिसोर्सेज आप चूज करें, जो भी आपकी मार्केट की साइज है, कितना बड़ा मार्केट का एरिया आप कवर कर रहे हैं, और क्या आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, उसको फुलफिल करें। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी कंपैटिबिलिटी आर एसेंशियल फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आपने कंपटीशन में अपने आप को मेंटेन करके रखना है, तो आपकी जजमेंट बहुत सारी चीजों से होती है। आपकी क्वालिटी मशीन्स हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही जनरेट करेंगी, और टेक्नोलॉजी, इफ यू आर यूजिंग अ कंपैटिबल टेक्नोलॉजी, इट इज आल्सो गोइंग टू सपोर्ट यू इन maintaining yourself in the competition with the world. Assets should support future scalability and innovation. और एसेट्स ऐसे हो कि फ्यूचर में आप आगे बढ़ सके, पीछे ना आ जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हम क्या करते हैं, एक ड्यूरेबल चीज होती है 5,000 की, हम एक एवरेज चीज ले लेते हैं 2,500 की, और दिल ना हमारा कहता है यार नहीं मैंने गलत किया, आई शुड हैव परचेज दैट 5,000 थिंग। और आपको बाद में रियलाइज होता है कि वो 2,500 की चीज आप 3 बार खरीदेंगे, और वो 5,000 की चीज एक बार खरीदने से यू विल ऑलवेज फील सेटिस्फाइड एंड सेटिएटेड। फ्यूचर स्केलेबिलिटी इज वेरी वेरी, अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट सर्विसेज एंड मेंटेनेंस एनहांसेस लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। और जो भी आप मशीनरी टूल्स ले, उनकी रेगुलर मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन होंगी तो चीजें यूज की जाएंगी, नहीं होंगी तो नहीं की। आप हर साल एसी यूज करते हैं, तो हर तरह की मेंटेनेंस करानी पड़ती है, उसको साफ करवाना पड़ता है। और कई बार तो जब आप बहुत ज्यादा चला लेते हैं, तो बीच में भी एक बार आपको साफ कराना पड़ता है, कूलिंग ही नहीं देता ड्यूरिंग दैट। आगे चलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ। फर्स्ट पॉइंट, रोल एंड इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैकबोन है कंपनी। क्या? ह्यूमन रिसोर्स। Human resources are the most valuable assets of any enterprise. Most valuable. लोग देख के पता चलता है कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है। विदाउट स्किल्ड पर्सनल ऑल अदर रिसोर्सेज आर इनफेक्टिव। अगर स्किल्ड लोग काम नहीं करेंगे तो बाकी के सारे रिसोर्सेज इनइफेक्टिव हो जाएंगे, माने जाएंगे, लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, मशीन्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे। राइट पर्सन एट द राइट जॉब एंश्योर्स प्रोडक्टिविटी एंड स्पेशलाइजेशन बेनिफिट्स। सही व्यक्ति को सही काम, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और स्पेशलाइजेशन बेनिफिट्स भी कंपनी यूज कर पाती है। एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज रिड्यूस एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर एंड वेस्टेज। और जितने आपके एफिशिएंट मतलब ह्यूमन बींग्स एम्प्लॉयज कंपनी में काम करेंगे, उतना ही एब्सेंटिज्म कम होगा, लेबर टर्नओवर कम होगी, मतलब लोग छोड़ छोड़ के कम जाएंगे, और वो वेस्टेज भी नहीं करेंगे बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर।
Types of quality the types and quality of personnel, very, very. Entrepreneurs must identify the qualifications, skills, and attitudes needed for each job. Very, very important, extremely important. मैं तो बहुत मानता हूँ इस चीज को. क्या? क्वालिफिकेशन. क्वालिफाइड बंदा ही रखो. थोड़ा सा भी अंडर क्वालिफाइड होगा ना तो तंग करेगा बाद में. उसके पास स्किल्स होनी चाहिए. पूछ लो भैया कितनी चीजें तुम्हें आती हैं. और एटीट्यूड, द वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स वर्क. अगर आपको हर काम बोझ लगता है ना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सपोर्ट द कंपनी. एटीट्यूड का मतलब नजरिया, वो बहुत जरूरी है कंपनी विजन के साथ. मैन पावर प्लानिंग मस्ट कंसिडर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. मेल्स अलग काम करें, फीमेल्स अलग काम करें, पर इंक्लूजन भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि भेदभाव ना हो, डर ना हो. जो भी जिसकी स्पेशलाइज जॉब है, जहां पर भी वो फिट इन होते हैं, दे शुड बी अलाउड टू डू इट इजी. Large enterprises require a broader range of roles from managers to technical staff. बड़ी कंपनीज, बड़ा फॉर्मेट, तो इट रिक्वायर्स ब्रॉडर रेंज ऑफ रोल्स जहाँ पे मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं. और अगर सबको अपने अपने रोल्स पता है, जेडीज पता है, केआरएस पता है, एंड दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग विद द सेम स्पीड टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, I can assure it on a piece of paper that an organization can never lag behind others. JDs, KRAs, KPIs, सबको सबके पता होने चाहिए. गट फीलिंग से काम ना. होता क्या है, अगर आप गट फीलिंग से काम करते रहते हैं ना तो आप और सिस्टमेटिक लोगों का काम खराब करते हैं. A well drafted job description helps in selecting suitable person. तो बड़ी अच्छी वेल ड्राफ्टेड जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए. पता तो हो कि भैया मैंने करना क्या है, सब कुछ तुमने ही करना है. दैट्स रॉन्ग. वेल ड्राफ्टेड वक्त लगता है भैया. एक जॉब डिस्क्रिप्शन को बनाने में ना वक्त लगता है, दिमाग लगता है, डिस्कशन लगती है. इट्स नॉट अ कैजुअल अप्रोच, इट्स अ वेरी फॉर्मल अप्रोच. वेरी फॉर्मल अप्रोच. कैजुअल अप्रोच में क्या, कोई भी जॉब दे दो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो. एंड दिस शोज हाउ इम्पैक्टफुल the people, those who are working over there of human resource are. Let's move on to the next point. Quantity and organizational planning. Work is divided into jobs and positions based on total workload and enterprise structure. जितना वर्कलोड होगा उसे इक्वली डिवाइड कर दिया जाए. फैक्टर्स लाइक एक्सपेक्टेड absenteeism, labor turnover and future growth affect manpower numbers. भाई ये जितना कम से कम हो, एब्सेंटिज्म कारण पता होना चाहिए कि बंदे काम पे क्यों नहीं आ रहे, छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं. तो ये बहुत, ये जो है ना एग्जिट इंटरव्यूज, दे आर वेरी क्रूशल. वेरी वेरी क्रूशल. इसमें पता चलता है कि वाई सर्टन पीपल, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में 10 लोग चले गए छोड़ के, क्यों गए. होता है शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, क्यों गए, जानना जरूरी है. मैनिंग टेबल्स help assess requirements across managerial, non-managerial and administrative roles. और अगर प्रॉपर आपको आपके रोल्स पता है, आपकी केपीआईज केआरएस पता है, तो आप अक्रॉस योर रोल्स एंड रोल्स ऑफ अदर्स यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ सिस्टम. मैनिंग टेबल्स हेल्प असेस रिक्वायरमेंट्स अक्रॉस मैनेजरियल, नॉन मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल. अब है क्या, कंपनीज आर इन सिंक विद ईच अदर. एवरी डिपार्टमेंट इज इन सिंक विद ईच अदर. एचआर, मर्चेंडाइजिंग, अकाउंट्स, आईटी, ये सब एक साथ जुड़कर काम कर. एफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग एड स्मूथ ऑपरेशंस एंड गोल अचीवमेंट. और जितनी एफिशिएंट मैन पावर होती है, उसकी प्लानिंग की जाती है, उतना ही स्मूथ ऑपरेशन होता है, और उतने ही इजिली गोल्स को आप अचीव कर. तो वेरी वेरी
क्वांटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग इज वेरी। आप हैफेजर्डली लोड डालते रहे, लोग लोड ले भी लेंगे, वो तरह मरता क्या ना करता, पर दे विल नॉट बी हैप्पी। फिर वो लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे, छुट्टियां लेंगे, काम पे नहीं आएंगे, काम को पसंद नहीं करेंगे। नो बडी गेट्स टू नो हु इज ट्रबलिंग देम, व्हाट आर द रीजंस ऑफ ट्रबल। और ये इम्पैक्ट है ना, लाइक काइजन, इट कम्स ऑन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसमें ना डिफॉल्टर बन जाती है। दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स, सिलेक्शन एंड प्रोफेशनल सपोर्ट। Systematic selection includes tapping talent, providing training and performance appraisal. एक सिस्टमेटिक वे का मतलब तरीका होना चाहिए। कोई आई ये नहीं कि अपने मन से सैलरी आपने दे दी, सैलरी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इफ somebody has joined as an executive, उसकी सैलरी क्या है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सबके ब्रैकेट्स बने होने चाहिए, पे स्केल होना चाहिए। सिस्टमैटिक सिलेक्शन इंक्लूड्स टैपिंग टैलेंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति नया आया आपकी कंपनी में, आपने विदाउट ट्रेनिंग उसको उतार दिया काम पे, वो 2 महीने तो काम ही खराब करता रहेगा। दिस शुड नॉट बी डन, इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली, बिकॉज इट इज नॉट। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, जैसे जैसे परफॉर्म करे वैसे वैसे उन्हें अप्रेजल्स मिलने चाहिए। आउटसोर्सिंग प्रोफेशनल सर्विसेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बर्डन अपने अपने ऊपर ना ले, आउटसोर्स करना पड़ता है प्रोफेशनल सर्विसेज को। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, ऑडिटर्स एंड कंसल्टेंट्स। इंप्रूव्स कॉस्ट एफिशिएंसी, जब जब इनकी जरूरत पड़े इनसे आप सर्विसेज ले सकते हैं। Entrepreneurs should focus on core task and outsource non-core functions. कोर टास्क सारा कंपनी देखे या ऑन्टरप्रेन्योर्स देखे, मालिक देखे, बाकी जो नॉन कोर फंक्शंस हैं उनको आउटसोर्स कर। कई कंपनी मैंने देखे हैं, वो आजकल जो पे स्लिप होती है, सैलरीज होती है, वो आउटसोर्स कर दिया उन्होंने। कुछ करना ही नहीं पड़ता है, एचआर को कम से कम काम करते और एफिशिएंटली करते। एंगेजिंग एक्सपर्ट सर्विसेज लीड्स टू बेटर टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट। जितनी एक्सपर्ट सर्विसेज, याद रखिएगा इस बात को, जितनी एक्सपर्ट सर्विसेज आप लेंगे इट विल लीड टू सेव टाइम, कॉस्ट एंड इट विल एवर्ट रिस्क इन फ्यूचर। जितनी एक्सपर्ट सर्विसेज आप लेंगे, अब आप ऑब्जर्व कीजिए, कोई एक्सपर्ट सर्विसेज, कोई कंसल्टेंसी आपको ऑफर करती है, तो हम क्या सोचते हैं, इट्स टू कॉस्टली, वी डू हैव लेस टाइम, हमारे पास टाइम ही नहीं है सर्विसेज के लिए। बट कुछ कंपनीज है इनसे अवेल करती है। अब आपने कभी सोचिएगा कि व्हाई सर्टेन कंपनीज दे अवॉइड इट एंड व्हाई अदर कंपनीज दे अवेल इट। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, इस सीक्रेट को समझना बहुत डिफिकल्ट है। आर यू गेटिंग इट? So engaging expert services leads to better time management, cost effectivity, and it lowers the risk. So human resources and physical resources are of great importance. Entrepreneurs should not take it lightly before, and during, their venture. So with this, we have come to the end of today's class where we have talked about two resources, physical resources, human resources as headers. And on their basis, we have taken four sub points. In physical resources, we had talked about importance of physical resources, site related considerations, equipment and technology factors, growth and market relevance. Whereas if you talk about human resource, we have talked about the role and importance of human resource, type and quality of personnel required and needed, quantity and organizational planning, and selection and professional support. So much of with this, we have come to the end of today's class. And on the basis of today's content, Mavericks India Solution has prepared rigorous practice section, which is now used by majority of the students. They are liking it dearly. It contains synopsis. It contains vocabulary from the session. And we have a firm belief that if you start working on this after the session, you are going to top in your school in CBSE on the basis of these classes. Practice question with hints, 10 objective type question with answers, true and false statements with answers, fill in the blanks with answers. So, bacho, until meet next time, bye bye for now. God bless you all. Take care
and see you all next week.